کہ جو اتنا بڑا جو سامان ہے اس میں ہر چیز شامل ہے، جو بھی ایک خاندان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہے۔ میں ان مخیر حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس مشکل کی گھڑی میں انہوں نے اس علاقے میں دل کھول کر عطیہ دے رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت۔ آمین آمین۔ باقی میں جنہیں آیا میں جٹھے جی جی خان کو لا کے تھوڑے راجن پور تک یہ سڑک جڑی ہے یہ ایکسپریس ہونی چاہیے اور ڈبل روڈ ہونی چاہیے، کیونکہ اتنا بہت حادثے تھی جاتا ہے، بہت لوگ ایکسیڈنٹ مر گئے اور بہت سارا نقصان تھی دے۔ میں سفارش کرے سا وزیر اعظم کو کہ یہ جڑی سڑک ہے ڈوئل کیریج بڑھائی بنے، جی میں ملتان کو ڈی جی خان ہے، جی میں ڈی جی خان کو راجن پور تک بڑھائی بنے۔ اور میں تو آپ کو دسنا چاہنا اگر میں بے نظیر فوٹو دنات جڑی میں برج بڑھائی ہے کوٹ مٹھن شریف اگر وہ نہ ہونی آج راجن پور سارا پاسو کٹی بنیا اور رابطہ ختم تھی بنیا۔ وہ صرف موٹر وے کے ذریعے وہ رابطہ وہ برج کے ذریعے قیمت طور پر دے کہ تعالیٰ میں سمجھنا اللہ تعالیٰ نے میرے کو ہمت دی تھی کہ وہ میں برج کو بڑھوا دوں۔ اور یہ بھی میں سمجھتا پیا کہ اتنا یہ غریب لوگ ہیں انہاں کو میں انتظامیہ کو یہ آپ سے کہ جڑے اگو کے پلان بنائے بنے جتنا فلڈ پہلے آندے اتنا تعمیر کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر سال نواں گھر بنے ہر سال ڈھائی بنے تینوں تے پلاننگ صحیح طریقے ہونی چاہیے۔ میں پیپلز پارٹی کو ہٹ کے نہ پیپلز پارٹی کا سوال ہے نہ پی ٹی آئی کا سوال ہے اور نہ ہی کئی پی ڈی ایم کا سوال ہے، قیمت عوام کی خدمت کا سوال ہے۔ یہ وجہ کروں میرے بیٹے علی موسیٰ کا الیکشن تھی تھا میں وہ چھوڑ کے تھوڑے کو لایا کھڑا تاکہ میں تھوڑے دکھ درد شامل کی سکوں اور اسا اپنے جلسے بھی ملتوی کر دیتے ہیں کیونکہ ساری لیڈر جڑے ہیں اسا نہیں چاہتے یہ موقع جو سندھ کو چھوڑ کے ملتان جلسے کریں، جلسے بعد تھی ویسے مگر یہ خدمت جڑی ہے وہ عبادت ہے۔ میرے اتنا بھیڑی ماما بیٹیاں بیٹھے میں ہدایت کرے سا کہ جڑے اتنا مخیر حضرات میرے نام آئے وافر سامان ہے وہ طریقہ کار جو تسا بڑھاؤ وہ بڑا منصفانہ بڑھاؤ اور بغیر افراتفری دے تسا انہوں نے گھر تک دہلیز تک امداد پہنچاؤ۔ اور میرے کو خوشی تھی سی کہ سارے تمام جڑے لوگ متاثرین ہیں انہوں کو امداد پہنچنی چاہیے اور انشاءاللہ پہنچی۔ اور میں انتظامیہ کوئی آکسا کہ انہوں کا ہاتھ بٹاویں تاکہ افراتفری نہ تھی سکے، اسپیشلی جڑی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ انہوں کی رہنمائی کرے تاکہ جو انہوں کا مال ہے وہ کو صحیح مانے صحیح لوگوں کو تقسیم ہونا چاہیے۔ میں آخر تمہارے تمام جڑے دوست میرے نال آئے ہوئے سردار صاحبان انسان ہیں اور جتنے ادھر پارٹی تنظیم کے لوگ آئے ہیں میں ضلعی صدر ہیں سب کا شکریہ ادا کرنا کہ وہ تشریف کا گھینا ہے اور یہ مشکل کھڑی ہے تھوڑا ساتھ دے دیتا ہے اور انشاءاللہ میں اپنا کو آکسا کہ وہ سارا کچھ بھول کے پارٹی کے کارکنہ کوئی میں آکسا وہ تھوڑی مدد شامل ہے۔ لوگوں کو مہربانی کوئی سوال کرنا ہوگا۔ صاحب یہ بتائیے ان سے جو خلاف کی صورتحال ہے جبکہ کچھ لوگ مر رہے ہیں بھوکے ہیں پریشان ہیں اور عمران خان صاحب نے جلد سے جلسے کر رہے ہیں
आप क्या कहेंगे सवाल? देखिए, मैं अपनी हद तक जवाब दे सकता हूँ। मैं इमरान खान का तर्जमान नहीं हूँ। वो जलसे करें, जुलूस निकालें, सड़कों पे घूमें, वो मेरा उसे सरोकार नहीं है। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हम जो हैं हम मरकूज कर रहे हैं अपनी तवज्जो सैलाब जदगान के लिए, ताकि उनके लिए हम बेहतर से बेहतर सहूलतें पहुँचा। बताइएगा कि यहाँ पर कई एकड़ बड़ी जमीन है जो मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुकी है, जहाँ पर बस्ती की बस्तियाँ जो है मुकम्मल तौर पर मुतासिर है, ज़मीन बहुत हो चुकी है। क्या समझते हैं हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो काबिल तारीफ है, काबिल अमल है? देखें, मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने 3 pronged पॉलिसी का जिक्र किया, क्योंकि 2010 में सैलाब आया था और मैं वज़ीर आज़म था और मैं खुद यहाँ हाज़िरी दी थी और कई पूरे जनूबी पंजाब में मैंने दौरा किया था। मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर हुकूमत को और वज़ारत ख़ज़ाना को कोई एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो मुतासरीन हैं इनको बिला सूद इनको कर्जा दिया जाए ताकि वो अपने पाँव पे फिर खड़े हो सकें। और दूसरा, इनको टैक्स में दूसरी चीज़ों में भी इनको अभियाना ठेका वगैरह में भी छूट देनी चाहिए। सवाल है सलमान जी, छोटे छोटे डैम अगर बना दिए जाए तो इस आफत से बचाया जा सकता है इलाके को। वफाकी हुकूमत से आप यहाँ रोज कोई जिसको हिल टॉरेंट्स कहते हैं वो काफ़ी मुतासर कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी तजवीज़ जो है डैम वो बहुत ज़रूरी है और उस पर कुछ काम भी शुरू हुआ है, तो उसको प्रायोरिटी पे कराना चाहिए ताकि लोग महफूज जो बिजली के बिल हैं उनके बारे में गवर्नमेंट पॉलिसी आ चुकी है और जो मैंने अभी रिलीफ कैंप में मैं गया हूँ, BISP के तरफ में गया हूँ, उधर मैंने कहा है कि इनको जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो इनको वापस किए जाएं और इस तरीके से उन्होंने 200 यूनिट तक तो वैसे भी उन्होंने फ्री कर दिया है जो गरीब लोग हैं, तो बाकी इस पर जो भी पॉलिसी होगी वो हमारे यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा सर एक मिनट यार, आप सर एक मजीद में सवाल करना चाहूँगा, ये है कि भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर आते हैं, रुझान का दौरा करते हैं, तो यहाँ पर कोई इलाका चुप करो, मुलाजिम चुप। यहाँ पर कोई ऐलान करके नहीं जाते, वापस चले जाते हैं जितनी देर भी यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब वो रुझान से अपना विजिट करके चले थे वापसी पर, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारे पास ऊपर कयामत गिरी है वज़ीर आज़म के दौरे के बाद गिरी है। हमारे जितने भी इलाके जो है वो सैलाब बुर्द हुए हैं, उस टाइम हमारा फादरपुर ही डूबा था, ऊपर के इलाके हमारे तमाम बचे हुए थे, हमारे कोई ज़मीनी रास्ते मुनक़ता नहीं हुए थे। इस वक्त भी हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा ज़मीनी रास्ते मुनक़ता है, हम अंदर बाहर नहीं आ सकते हैं। ये जो वक्त है ये क़यामत सुगरा का वक्त है, इस टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं आए जबकि ज़रूरत थी वज़ीर आज़म। देखें, पहली तो बात यह है कि हमारी मखलूत हुकूमत है, सिर्फ एक जिम्मेवारी वज़ीर आज़म की नहीं है, उसके लिए हमारे सबकी जिम्मेवारी है और इंशाल्लाह जो मैंने मौके पर देखा है मैं अपनी भी उनको सिफारिशात भेजूंगा जिस पे इंशाल्लाह वो अमल किया जाएगा। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात ज़्यादा सूबों को आ गए और जो इंटरनेशनल अपील हुई है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कि हम पाकिस्तान की मदद की जाए, तो लाखों डॉलर इंशाल्लाह पाकिस्तान को आएंगे और उससे आप जैसे आप कह रहे थे कि आपके रास्ते मुनक़ता हैं, तो मैंने कहा कि रिकन्स्ट्रक्शन तामीर नाव आखिर में की जाएगी, पहले आपको बचाया जाएगा, पहले आपको रेस्क्यू किया जाएगा, रिलीफ किया जाएगा, रिहैबिलिटेट किया जाएगा और एंड में रिकन्स्ट्रक्शन की असेसमेंट होगी कि इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। इंशाल्लाह वो भी हमारी जिम्मेवारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेवारी है, वो हम करें। सर मेरा लास्ट सवाल पूछने का मकसद सिर्फ पंजाब हुकूमत की तरफ से जो भी हमारे साथ किया जा रहा है
वो मुतासिर सैलाब के पास नहीं पहुंच रहा। मेरा सिर्फ सवाल करने का मकसद ये था कि आप लोग कब बीच में आएंगे। इस वक्त मुतासिर सैलाब के पास कुछ नहीं पहुंच रहा। जो मुखय्यर हजरात इलाकों में पहुंच रहे हैं क्योंकि वो जा नहीं सकते वहाँ पर, उनके पास कोई रूट नहीं है, कोई उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं है जो वहाँ पर पहुंच सके। लोग मैंने जो मुखय्यर हजरात को लेकर आया हूँ वो लोकल है, वो यहाँ के हैं और वो सारा इलाका जानते हैं, उनकी अपनी ज़मीनें हैं यहाँ, तो वो दर्द दिल रखते हैं और वो इंशाल्लाह सही लोगों को वो इमदाद मिल जाए। कोई और सवाल? सराकी सूबे के हवाले से अमीर अंकल जानवरों से ताल्लुक है मेरा, तो ये जो मेरा सराकी सूबे की गाल है वो इंशाल्लाह पहले तो आपको याद हो सी कि त्रै महीना का वादा इमरान खान साहब ने किया और आख्या है कि मैं त्रै महीने जनूबी पंजाब इतिहाद जिहड़ा बनाया गया है, अगर मेरी मदद करे सन तो 3 महीने मैं तो सूबा बना दे हूँ। वो क्या आखते हैं कि साढ़े को अक्सरियत कोई ना है। मैं पूछना चाहना जिहड़े तुसां बिल बुलडोज किते और उहदे नाल EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का या ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का या पैर तुसां जिहड़े कवानीन बुलडोज करके पास कर देते हैं और वो जॉइंट सेशन है, क्या तुसां जनूबी पंजाब सूबा बनाने का जिहड़ा तुहाडा अपना वादा है वो न कर सकते आप? ये तो सिर्फ एक गोमलों को मिट्टी लहेंदे पे, ये आप चाहे ना नीयत ठीक होवे तो कर देवे ना, मगर उन्होंने नीयत ठीक है ही कोई ना। वो वेंदन बहावलपुर आदन तोड़ा सूबा बने सो, मुल्तान आदन तोड़ा सूबा बने सो, डीजी खान मंजन आदन इतना भी दफ्तर पड़सी, ये सिर्फ तवज्जो हटावन की गाल है। उन लोगों को सोचना चाहिए जेड़े जम्मू वक्त सराइकी जनूबी पंजाब इतिहाद बना है, वो जेड़े लीडर हैं वो कितना है, उन्होंने को पूछो कि तुसा उन्होंने वोट दे के आज तक उन्होंने खड़े हो, तो इनका मतलब है तुसा अपना मफाद दिखे, तुसा खिते का वसेब का तुसा ख्याल नहीं। सर वफा के तुसा इत्तेहादी हो डैम से वाला ना क्या करते हैं, छोटे छोटे डैम बढ़ा दे बताया मन तक रोज कोई का पानी मैं उनके हक के चाह पहले भी पढ़ते Bronze Dam तो जमान के लिए कंसल्टेंसी जब भी Bronze Dam बिलाली साहब एक सारे सवाल शेड की तरफ किया सारे दौर है, तो मैं यो वजीर आजम साहब को सबको पहले अमीन अंजम साहब स्पीड बड़ी स्लो है ये वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे अब वफाक से क्या यहाँ पे लेके आए मुखय्यर हजरात के अलावा? देखें वफाक की तरफ से आप ये बताएं कि आपको ये मोहम्मद वाला ये जो है आपका बेनजीर ब्रिज जो थी वो आपको मिली, उससे पूरा इलाका खुल गया ये 2010 में आपने और बाड़ी का जो था उसका रोड मैंने दिया था, और उसके अलावा जितने भी राजनपुर गैस ये जो गैस वो मैंने रुझान तक मैंने दी। उसके अलावा स्पोर्ट प्रोग्राम से कितने खानदान है जो मुस्तफीद हो जम पर फ्लैट बंद ही तुसा नहीं थी मैं शुक्रिया او دي جو